محترم ناظرین السلام علیکم۔ روشن ٹی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ کسی آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے گری پڑی کسی تھیلی میں چاندی مل جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا ظرف، اس کا بندھن اور اس کی تعداد اچھی طرح محفوظ کر کے 1 سال تک اس کی تشہیر کرو۔ اگر اس دوران اس کا مالک آ جائے تو اس کے حوالے کر دو، ورنہ وہ تمہاری ہو گئی۔ آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم سرخیوں پر۔ اندلوئی سے تعلق رکھنے والے گنگا دھر کے فرزند کا شہر حیدرآباد میں پیش آئے واقعے میں فوت ہونے پر ریاستی وزیر KTR نے انتہائی افسوسناک قرار دیا اور مستقبل میں ایسے واقعات کو رونما نہ ہونے کا دیا تحفظ۔ ضلع نرمل سارنگپور منڈل کے جام دیہات میں KGBV نئے کالج کا ریاستی وزیر اندرا کرن ریڈی نے کیا افتتاح۔ آرزو ملے جیون ریڈی کے حیدرآباد میں واقع رہائش گاہ میں بیارت قائدین و عوامی نمائندوں نے ملاقات کرتے ہوئے مختلف امور پر کیا تبادلہ خیال۔ بین الاقوامی سطح پر اپنی طاقت کا بہترین مظاہرہ کرنے والی باکسر نکھت زرین کو تلنگانہ حکومت کی جانب سے مکان کے لیے اراضی کی گئی حوالے۔ BRS و BJP پارٹی عوام کے اعتماد سے محروم ہو چکی ہے۔ وہ آئندہ منعقد ہونے والے انتخابات میں کانگریس پارٹی فتح حاصل کرنے کا کانگریس پارٹی کے سابقہ وزیر سدرشن ریڈی کا نندی پیٹ میں منعقدہ ہاتھ سے ہاتھ جوڑو یاترا سے خطاب۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیلی جانب۔ حافظ لئی خان پر پھولوں کی بارش، ملت کے ہر مسئلے پر آگے آنے پر ہر دل عزیز شخصیت بن گئے۔ حلقہ اسمبلی نظام آباد اربن میں حافظ محمد لئی خان صدر ضلع جمیعت علماء ہند کی مقبولیت آسمان کی بلندیوں پر پہنچ چکی ہے۔ کل ہاشمی کالونی کے نوجوانوں کی جانب سے حافظ محمد لئی خان کی عزت افزائی کے لیے تہنیتی تقریب کا اہتمام عمل میں لایا گیا۔ جیسے ہی حافظ محمد لئی خان تقریب میں پہنچے، ان پر پھولوں کی بارش کی گئی۔ ایسا پہلی بار دیکھا گیا کہ کسی شخصیت کی آمد پر پھولوں کی برسات کی گئی۔ تہنیتی تقریب میں نوجوانوں نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ حافظ محمد لئی خان ملت اسلامیہ کے ہر مسئلے پر بلا تاخیر دستیاب رہتے ہیں۔ مرکزی حکومت کی جانب سے 3 طلاق کا مسئلہ ہو یا NRC کے خلاف احتجاج یا پھر NIA سے مسلم نوجوانوں کی رہائی، قدیم کلیکٹریٹ مسجد کی بازیابی کے لیے ہائی کورٹ سے اعلیٰ عہدیداروں کو نوٹس جاری کرواتے ہوئے مسجد کی بازیابی کی راہ ہموار کرنے پر نوجوانوں کی جانب سے تہنیتی تقریب کا اہتمام عمل میں لایا گیا۔ حافظ محمد لئی خان کی مقبولیت میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ وہ ہر دل عزیز شخصیت بن چکے ہیں۔ اللہ وبرکاتہ۔ آج یہاں ہم سب کا جمع ہونے کے پیچھے ایک مقصد ہے، اور اس مقصد میں جو ہے ہم حافظ لئی خان صاحب کی گلپوشی کے لیے یہاں سب جمع ہوئے ہیں، اور گلپوشی اس لیے ہم حافظ لئی خان صاحب کی کر رہے ہیں کہ جو نظام آباد میں اہم مسئلہ اس وقت چل رہا تھا اولڈ کلیکٹریٹ کی مسجد کو لے کر، بڑے بڑے عہدوں پر جو تھے، جو بڑے بڑے پولیٹیکل لیڈرز نے جو دعویٰ کیا اور اس میں وہ ناکام رہے، حافظ لئی خان صاحب نے جو وہ کر کے دکھایا۔ آج حافظ لئی خان صاحب نے اس مسجد کے اوپر جو irresponsibilities کر رہے تھے وہ لوگوں کے اوپر حافظ لئی خان صاحب نے کیس کیا، اور جب بھی کوئی نظام آباد کے اوپر مشکل آتی ہے، کوئی مظلوموں کے اوپر کچھ ظلم ہوتا ہے، تو ہمیشہ حافظ لئی خان صاحب جو ہے اپنا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، ہمیشہ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیتے ہیں اور ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ آپ سب نے نظام آباد کے عوام نے دیکھا، اقلیتی علاقوں میں پارک، پلے گراؤنڈ، قبرستان و کھوجا کالونی گراؤنڈ کا تحفظ، سمر اسپورٹس کمیونٹی ہال کی تعمیر کے لیے فنڈ مختص کرنے، سید قیصر کی ضلع کلیکٹر اور میونسپل کمشنر سے نمائندگی۔
सैयद खैसर कायद कांग्रेस पार्टी ने पीर के दिन निजामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बजट इजलास के आगाज से कबल अम्बेडकर भवन पर जिले कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु और म्यूनसिपल कमिश्नर चित्रा मिश्रा से मुलाकात करते हुए तहरीरी नुमाइंदगी हवाले की, जिसमें शहर के अगलती इलाकों में पार्क प्लेग्राउंड का क़याम अमल में लाने का पुरजोर मुतालबा करते हुए कहा कि निजामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पर बरसर इक़्तिदार बॉडी की दूसरी मियाद के दौरान अभी तक अगलती इलाकों में पार्क या प्लेग्राउंड का क़याम अमल में नहीं लाया गया है, जिसकी वजह से इन इलाकों की अवाम को सुबह के वक्त सेहत से मुताल्लिक़ सरगर्मियाँ अंजाम देने और स्पोर्ट्स को फ़रोग़ देने में मुश्किलात हो रही हैं। इन्होंने कहा कि खोजा कॉलोनी में बल्दिये की 2666.88 मुरब्बा गज अराजी मौजूद होने के बावजूद इस अराजी पर पार्क या प्लेग्राउंड कायम नहीं किया जा रहा है, जिसके खिलाफ कई बार शिकायत हवाले की गई है, लेकिन बल्दिये की कीमती अराजी का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा सैयद खैसर ने अगलती इलाकों में लाइब्रेरीज, कम्युनिटी हॉल के लिए फंड्स की मंजूरी अमल में लाने पर जोर दिया। कब्रिस्तानों की सारबंदी न किए जाने की वजह से नाजायज कब्जात और मुरम की नाजायज नकासी के वाक़यात सामने आ रहे हैं। तमाम इलाकों में वाक़ई मुस्लिम कब्रिस्तानों की सारबंदी के लिए फंड्स की जुराई पर जोर दिया। सैयद खैसर ने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरह निजामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से गरमाई तातीलात में समर गेम्स का इनेकाद अमल में लाते हुए तलबा की स्पोर्ट्स सलाहियतों को फ़रोग़ देने का मुतालबा किया। इन्होंने कहा कि समर स्पोर्ट्स के लिए खुसूसी फंड्स मुख्तस किया जाता है, लेकिन निजामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन समर गेम्स पर तवज्जो नहीं दे रहा है। जिले कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु और म्यूनसिपल कमिश्नर चित्रा मिश्रा ने सैयद खैसर की नुमाइंदगी पर फंड्स मुख्तस करने का तयक़ुन दिया। बैनुल-अक़वामी सतह पर अपनी ताकत का बेहतरीन मुजाहरा करने वाली बॉक्सर निखत ज़रीन को तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मकान के लिए अराज़ी हवाले की गई। बैनुल-अक़वामी सतह पर अपनी ताकत का बेहतरीन मुजाहरा करने वाली बॉक्सर निखत ज़रीन को शहर हैदराबाद के जुबली हिल्स में 600 गज मकान से मुताल्लिक़ा दस्तावेज़ात को रियासती वज़ीर स्पोर्ट्स श्रीनिवास गौड़, सेक्रेटरी संदीप कुमार सुल्तानिया के हाथों बरोज़ेबी निखत के हवाले मोहम्मद अहमद जमील अहमद को हवाले किया गया। इस मौके पर श्रीनिवास गौड़ ने खिताब करते हुए कहा कि CM KCR की जानिब से दिए गए वादे के मुताबिक 2 करोड़ रुपए नकद इनाम वो जुबली हिल्स में 600 गज मकान के राजी से मुताल्लिक़ा दस्तावेज़ात हवाले करने का इजहार किया। ఇంకా ఎంతో మంది క్రీడాకారులు తయారు చేయడానికి ఒక కొత్త క్రీడా పాలసీ కూడా తయారు చేస్తున్నాం। ఆ క్రీడా పాలసీ ద్వారా దేశంలో క్రీడాకారులకు, కోచ్లకు, క్రీడా అకాడమిక్ల అందరికీ కూడా ఒక మంచి రూట్ మ్యాప్ వచ్చేటట్టు కూడా మేము తొందరలో తయారు చేసి వచ్చే క్యాబినెట్ సమావేశంలో క్రీడా పాలసీని కూడా రూపొందించి దాన్ని అందిస్తాం। థ్యాంక్ యూ। शहर हैदराबाद के एक इलाके में कुत्तों के हमले का वाकया पेश आने पर रियासती वज़ीर KTR ने रद्द अमल का इजहार करते हुए इस तरह का वाकया मुस्तकबिल में रोनुमा न होने का दिया तयक़ुन। शहर हैदराबाद के एक मुकाम पर कुत्तों के हमले में 5 साला मासूम बच्चे के फौत होने का वाकया पेश आने पर रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म KTR ने रद्द अमल का इजहार करते हुए बच्चे के अफराद खानदान से ताज़ियत का इजहार किया और इस वाक़े इंतहाई अफसोसनाक करार देते हुए इन्होंने इस तरह के वाक़यात को फिर दोबारा रोनुमा न होने के लिए इक़दामात अमल में लाने का तयक़ुन दिया और हर म्यूनसिपालिटी में आवारा कुत्तों के मसले को हल करने के लिए कोशिश करते हुए इस मकसद के तहत जानवरों की निगहदाश्त मराकज़ के अलावा इनकी पैदाइश पर काबू पाने के लिए मराकज़ का क़याम अमल में लाने का रियासती वज़ीर KTR ने इजहार किया। The street dog menace is something that we've been trying to, tackle in our municipalities across the state. In fact, we've created animal care centers, animal birth control centers. We take street dogs very regularly. We actually, conduct these birth control operations. We actually ensure that the animals are also treated in a humane way. But when these incidents happen, it generally creates an uproar and a furor. My sincere condolences to the family. And we'll ensure that our best is done so that these incidents are not recurred. But our biological waste disposal also needs to be upped. So we will certainly do everything in our capacity. And my sincere condolences to the family. I know I can't bring back the child, but my sincere condolences, and I'll do everything in my capacity so that. जिले TR सदर आर्मर MLA जीवन रेड्डी के हैदराबाद में वाक़ रिहाइशगाह में BRS कायदीन व अवामी नुमाइंदों की हलचल नजर आई। आर्मर रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन व जिला TR सदर जीवन रेड्डी के हैदराबाद में वाक़ मिनिस्टर क्वार्टर के रिहाइशगाह में BRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन की हलचल नजर आई, जिसमें आर्मर हल्का असम्बली के BRS कायदीन से MLA जीवन रेड्डी ने इजलास मुनक़िद करते हुए हल्के की तरक्की व मसाइल व दीगर उमूर के ताल्लुक से अवामी नुमाइंदों से तबादले ख्याल करते हुए मुख्तलिफ हिदायत जारी की।
బాత్రూమ్ ఏడాదికి వచ్చినాడు అది తీసేయరా బాబా, పేరు తీసేసి ప్లాస్టిక్ కంపౌండ్ వాళ్ళు అయింది కదా. जिले निर्मल के सरकारी हॉस्पिटल में जदीद तौर पर क़याम अमल में लाए गए सिटी स्कैन सेंटर का रियासती वजीर इंदिरा करण रेड्डी ने किया मुशाहिदा। जिले निर्मल के सरकारी हॉस्पिटल में जदीद तौर पर क़याम अमल में लाए गए सिटी स्कैन सेंटर का रियासती वजीर इंदिरा करण रेड्डी ने मुशाहिदा करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौरे इक़्तिदार में सीएम केसीआर की कामयाब तरीन क़यादत में तेलंगाना को सेहतमंद तेलंगाना में तब्दील करने के मकसद के तहत जिले निर्मल के मुकाम पर वाक़ सरकारी हॉस्पिटल में 1,50,00,000 रुपए की मसारफ से जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से आरास्ता सिटी स्कैन का हाल ही में रियासती वज़ीर सेहत व ख़जाना हरीश राव के हाथों इफ्तिताह अमल में लाने का इजहार किया। बातज़ा रियासती वज़ीर ने हॉस्पिटल के फर्स्ट फ्लोर पर ज़ेर तामीर भवन के कामों का लिया जायजा। जिले कामारेड्डी के मुकाम पर क़याम अमल में लाए गए कंटी वेलगू प्रोग्राम का CMO सेक्रेटरी स्मिता सबरवाल ने लिया जायजा। जिले कामारेड्डी के मुकाम पर कायम किए गए कंटी वेलगू प्रोग्राम का CMO सेक्रेटरी स्मिता सबरवाल ने जायजा लेते हुए आंखों के टेस्ट के लिए किए गए इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया और कैंपों तक पहुंचने वाले सामान के बारे में दरियाफ्त किया। अहदेदारों को मशवरा दिया गया कि वो बगैर किसी कोताही के एक अच्छी मनसूबाबंदी के साथ काम करते हुए कैंपों को कामयाब बनाए। स्टाफ से कैंपों में टेबल के मुताबिक अंजाम दी जाने वाली ड्यूटी के बारे में पूछताछ की गई और इनकी तैयारी का पता लगाया गया। मेडिकल टीम के अरकान को वक्त की पाबंदी करनी चाहिए और सुबह 8:30 तक कैंपों में पहुंच जाना चाहिए। इन्होंने आंखों के मुआयने और जरूरतमंदों को अद्वियात और चश्मे की फराहमी के लिए मनसूबाबंद इंतजाम करने का हुक्म दिया। एक वसी मुहिम चलाई जाए ताकि लोग इस प्रोग्राम से फायदा उठा सकें और 18 साल से ज्यादा उम्र के हर शख्स की आंखों का मुआयना करने की हिदायत दी। रेंजर मंडल के अम्बेडकर नगर देहात में क़याम अमल में लाए गए कंटी वेलगू प्रोग्राम का मुकामी सरपंच मधुरा बाई ने इफ्तिताह अमल में लाया। रेंजर मंडल के मुकाम पर मुकामी सरपंच मधुरा बाई ने अम्बेडकर नगर देहात में कायम किए गए कंटी वेलगू प्रोग्राम का इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए बताया कि हुकूमत की जानिब से क़याम अमल में लाए गए कंटी वेलगू प्रोग्राम 2 यौम तक जारी रहेगा, लिहाजा मुकामी अवाम इसी कैंप से रुजू होकर आंखों का मुआयना करने वाले जरूरतमंदों में अद्वियात और चश्मे की फराहमी अमल में लाने का इजहार करते हुए इन्होंने तमाम बिरादरियों से शिरकत करते हुए कंटी वेलगू प्रोग्राम को कामयाब बनाने की ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में नायब सरपंच, हेल्थ सुपरवाइजर, तिब्बी अमला, प्रवीण के, रविंदर, इरफान, आशा वर्कर्स दीगर ने शिरकत। తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా పెట్టినటువంటి కంటి వెలుగు ప్రోగ్రాం అంబేద్కర్ నగర్ గ్రామ పంచాయత్ ఆవరణలో అట్టహాసంగా ప్రారంభించడం జరిగింది। भीमगढ़ शहर के म्यूनिसिपल दफ्तर में रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब सीएम रिलीफ फंड स्कीम के तहत मंजूर करदा CMRF चेकों की अवामी नुमाइंदों के हाथों मुस्तहिकीन में फराहमी अमल में लाई गई। भीमगढ़ शहर के मुकाम पर अवामी नुमाइंदों ने रियासती वजीर इमारत और शौरा वेमला प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब सीएम रिलीफ फंड स्कीम के तहत मंजूर करदा CMRF चेकों की इस्तेफादा कुनिंदगान में फराहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि साबिक़ा हुकूमत के दौर इक़्तिदार में ना होने वाले कई तरक्याती काम तेलंगाना हुकूमत के बरसर इक़्तिदार पर आने के बाद सिर्फ 8.5 साल दौर इक़्तिदार में कामयाबी के साथ रूबे अमल में लाते हुए बिला लिहाज मज़हब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को रास्त तौर पर फैज़याब किया जा रहा है, जिसकी किसी दूसरी रियासत में नज़र नहीं मिलती। इन्होंने कहा कि सतह ग़ुरबा से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को कॉर्पोरेट तर्ज के तौर पर इलाज मुआलजा फराहम करने के मकसद के तहत CM KCR की जानिब से मुतारफ़ करदा सीएम रिलीफ फंड स्कीम के तहत खानगी हॉस्पिटल में शरीक इलाज मुआलजा हासिल करने वालों को दरकार अखराजात की अदायगी अमल में लाई जा रही है। लिहाजा खानगी हॉस्पिटल में इलाज व मुआलजा हासिल करने वाले अफराद हॉस्पिटल बिल के साथ कैंप ऑफिस CM रिलीफ फंड की दरख्वास्त दे तो इनके लिए चीफ मिनिस्टर KCR की जानिब से शुरू की गई CM रिलीफ फंड स्कीम के जरिए मुस्तहिक़ को रकम इमदाद हवाले करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में TRS पार्टी के कायदीन, कारकुनान, अवामी नुमाइंदे व दीगर ने शिरकत की। बालकुंडा मंडल के जलालपुर देहात में यासंगी फसलों व PM किसान के तालों से शौर बेदारी का इनेकाद अमल में लाया गया। बालकुंडा मंडल के मुकाम पर वाक़ जलालपुर देहात में यासंगी फसलों व PM किसान बैंक खाते को आधार से मरबूत करने के ताल्लुक से शौर बेदारी अमल में लाई गई। इस मौके पर मंडल ज़रई अहदेदार महेंद्र रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि PM किसान के तहत हर साल 6,000 रुपये हासिल करने वाले तमाम किसान अपने बैंक के खाते को आधार से मरबूत के लिए इससे मुताल्लिक़ा बैंक से रब्त पैदा करने की ख्वाहिश की। इन्होंने कहा कि अगर 205 किसानों की जानिब से इनके बैंक खाते को आधार से मरबूत न करने के बायस मरहलेवार तरीके से रकम जमा
नहीं होगी, लिहाजा किसान पीएम किसान के तहत नकद रकम जमा होने वाले बैंक खाते में यकीनी तौर पर आधार को लिंक करवाने और कॉन्सेप्ट फॉर्म बैंक में दाखिल करते हुए आधार सेटिंग को मुकम्मल करने की ख्वाहिश की। इसी तरह से 206 किसान अपने पीएम किसान को eKYC यानी आधार को मोबाइल नंबर से लिंक करवाने की ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में नायब सरपंच लिम्बा रेड्डी, AEO कृष्णा वेनी, ग्राम पंचायत अमला, VRAO किसानों ने शिरकत की। జలాల్పూర్ గ్రామంలో పిఎం కిసాన్ ఆధార్ సీడింగ్ మరియు ఈకేవైసీ పై ఈరోజు మరియు యాసంగి పంటల నమోదుపై అవగాహన సమావేశం నిర్వహించడం జరిగింది। ఇందులో భాగంగా रेंजल के प्राइमरी एग्रीकल्चर सेंटर में मार्कफेड के तहत क़याम अमल में लाए गए मूंगफली खरीदारी मराकज़ का PACS चेयरमैन मोइनुद्दीन, ZPTC विजय, मुकामी सरपंच रमेश के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। रेंजल मंडल के मुकाम पर PACS चेयरमैन मोइनुद्दीन, ZPTC विजया व मुकामी सरपंच रमेश ने मार्कफेड के ज़ेरे निगरानी में क़याम अमल में लाए गए मूंगफली खरीदारी मराकज़ का इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि किसान दरमियानी अफराद से रुजू ना होकर हुकूमत की जानिब से क़याम अमल में लाए गए खरीदारी मराकज़ पर अपनी काश्त करदा पैदावार को फ़रोख्त करते हुए हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली मुनासिब कीमत हासिल करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मुकामी सरपंच रमेश, PACS चेयरमैन मोइनुद्दीन, ZPTC विजया, अवामी नुमाइंदों के अलावा कायदीन मुकामी अवाम ने शिरकत की। నేటి రోజు రెంజల్ సొసైటీ కొనుగోలు కేంద్రం సొసైటీ ఆధ్వర్యంలో కొనుగోలు చేయడం జరిగింది। మార్క్ఫెడ్ ద్వారా క్వింటాల్కి 5,335 రూపాయలు, అదే రైతులు మ్యాచర్ వచ్చే వరకు తీసుకొచ్చి సరైన ధర। शहर के बोबली विधि का अर्बन MLA बीगाला गणेश गुप्ता ने दौरा करते हुए इलाके के मसाइल को हल करने का किया इजहार। निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने शहर के बोबिली विधि का दौरा करते हुए चिर हनुमान मंदिर में खुसूसी पूजा पाठ अंजाम देते हुए बोबिली स्टेट डेवलपमेंट कमेटी की जानिब से क़याम अमल में लाए गए इजलास से खिताब करते हुए कहा कि बोबिली स्टेट के सड़क व ड्राइनेज से वाबस्ता कामों को पाए तकमील पर पहुँचाने के साथ साथ बोबिली स्टेट के हर एक गली में CC रोड, BT रोड की तामीर अमल में लाई गई है और इसके अलावा ट्रैफिक के मसले का हल करने के लिए मार्केट को जाने वाली रोड को चौड़ी करने का इजहार करते हुए इन्होंने बोबिली स्टेट डेवलपमेंट कमेटी की जानिब से हासिल करदा मसाइल को अनकरीब हल करने का तयक़ुन दिया। इस प्रोग्राम में मुकामी कॉर्पोरेटर B मरहुदुल्ला अरुण, नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, BRS खादिन, डंडू शेखर, B मधु, बोबिली स्टेट डेवलपमेंट कमेटी के मेंबरान नरसैया, आलोका प्रसाद व दीगर ने शिरकत की। మరి ఈ మధ్యలో బొబ్బిలి వీధి మన నాగేంద్ర గుడి కూడా రోడ్ కావాలని చెప్పేసి వీక్లీ బజార్ నుంచి మొదలు పెడితే మరి బొబ్బిలి వీధి మీదుగా ఇక్కడ వరకు ఈ రోడ్లు వేయించింది। ఇంకా చిన్న చిన్న మనం చూసుకుంటే నాకు తెలిసి ₹1,00,00,000 కొన్ని ప్రపోజల్స్ కూడా అరువు పెట్టినటువంటి విషయం నాకు తెలుసు। ఇవి కాకుండా మిగిలితే ఖచ్చితంగా ఒకరోజు మీ అందరితో నా ఆఫీస్లో కూర్చొని అధికారులు మీ సమస్యలు అధిగమిస్తారని చెప్పేసి మాటిస్తూ మరి నన్ను ఆహ్వానించి సత్కరించినందుకు అందరికీ। सारंगापुर मंडल के जाम देहात में 2 करोड़ 5 लाख रुपए की मसारफ से तामीर करदा कस्तूरबा गांधी गर्ल्स कॉलेज का रियासती वज़ीर इंदिरा करण रेड्डी ने किया इफ्तिताह। सारंगापुर मंडल के मुकाम पर वाक़ जाम देहात में 2 करोड़ 5 लाख रुपए की मसारफ से तामीर करदा कस्तूरबा गांधी गर्ल्स कॉलेज का रियासती वज़ीर इंदिरा करण रेड्डी ने इफ्तिताह अमल में लाते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद ही तालीम, तिब व ज़राअत के शोबे तरक्की कर रहे हैं और तमाम मुकामात पर सरसब्ज़ शादाब माहौल नजर आ रहे हैं और इसी तरह से तेलंगाना हुकूमत के दौर इक़्तिदार में लड़कियों के लिए क़याम अमल में लाए गए 10th क्लास के बाद इंटरमीडिएट तक की तालीम फराहम करने के मकसद के तहत KGBV में इंटरमीडिएट का क़याम अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में ZP चेयरपर्सन विजय लक्ष्मी रेड्डी, कलेक्टर के वरुण रेड्डी, DEO रविंदर रेड्डी, लाइब्रेरी चेयरमैन A राजेंद्र, रैतु सामान्य समिति जिले सदर वेंकट राम रेड्डी, ZPTC राजेश्वर रेड्डी, MPP महिपाल रेड्डी, मार्केट चेयरमैन श्रीनिवास रेड्डी, मंडल इंचार्ज अलुला मुरलीधर रेड्डी, सरपंच मुरली कृष्णा व दीगर ने शिरकत की। निजामाबाद शहर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज व इससे मुल्हिका जनरल हॉस्पिटल का नेशनल मेडिकल काउंसिल टीम ने अचानक तनख्वाह अमल में लाई। नेशनल मेडिकल कमीशन टीम से वाबस्ता डॉक्टर्स आइवा चटर्जी, डॉक्टर राजकुमार राठौड़ ने सुबह के अव्वल इन सातों में हॉस्पिटल के पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट व फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट का मुशाहिदा करते हुए हॉस्पिटल में मौजूदा सहूलियात का जायजा लेने के अलावा दीगर डिपार्टमेंट से तिब्बी अमले के
सर्टिफिकेट का मुआयना करते हुए कहा कि मेडिकल कॉलेज के मौजूदा फार्माकोलॉजी में 3 तंजीमों का इजाफा और नए पल्मोनरी सेक्शन 3 नशिस्तों को मुख्तस करने के लिए तनख्वाह अमल में लाने का इजहार किया। बिहार से बीजेपी पार्टी अवाम के इत्मीनान से महरूम हो चुकी है। वो आइंदा मुनाकिद होने वाले इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी फतेह हासिल करने का कांग्रेस पार्टी के साबिका वजीर सुदर्शन रेड्डी ने किया इजहार। नंदीपेट मंडल के मुकाम पर हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा प्रोग्राम के तहत मुनाकिद होने वाली तशहीरी मुहिम में कांग्रेस पार्टी के साबिका वज़ीर सुदर्शन रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि बिहार से बीजेपी पार्टी अवाम को धोखा देते हुए इनकी जिंदगियों से खिलवाड़ किया जा रहा है और रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाले अशिया की कीमतों में इजाफा करने के अलावा गैस सिलेंडर्स की कीमतों में बेतहाशा इजाफा करते हुए अवाम की जिंदगी को मुश्किल बनाया जा रहा है। इन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत के इक़्तिदार पर आने के फौरी बाद 500 रुपए में सिलेंडर वो रोजमर्रा इस्तेमाल करदा अशिया की कीमतों में कमी लाकर अवाम की जिंदगी में खुशहाली लाने का इजहार किया। इस मौके पर इनके साथ कांग्रेस पार्टी के कायद गड़गू गंगाधर, साबिका MLC भूपति रेड्डी, ताहिर बिन हमदान, राम मोहन राव, पी इंदुर, दिग्राम गंगा रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। కాంగ్రెస్ పార్టీ మీ బాధలిని తెలంగాణ ఇచ్చిన తర్వాత మేము ఎందుకు వచ్చామంటే ఇందిరాగాంధీ మన్మడు రాహుల్ గాంధీ మొన్న ఎండనక వాననక చలనకుండా 7 నెలలు పాదయాత్ర చేసి దేశమంతా వారు మన బాధలిని అవన్నీ విన్న తర్వాత వారు చెప్పారు మీరు గ్రామాల్లోకి వెళ్ళండి, అందరం కలిసి ఉందాం, ఆట్ జోడో చేతులు కలిపి మనం ఉందాం. వీళ్ళందరూ ఏం చేస్తా ఉన్నారు, ఇవన్నీ అయిపోయినాయి, కులాలు విభజించి ఓట్లు వేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నారు. కాబట్టి मोरताड़ मंडल के मुकाम पर दीवार की मरम्मत करने के दौरान होने वाले हादसे में 2 अफराद फौत होने का ईसाई मुत्तम राजू ने किया इजहार। मोरताड़ मंडल के मुकाम पर दीवार की मरम्मत करने के दौरान दीवार मुनहदिम हो जाने के बायस एक शख्स बरसरे मौके फौत होने के अलावा इसी हादसे में और एक शख्स जख्मी होकर हॉस्पिटल में जेर इलाज तिब्बी इमदाद हासिल करते हुए फौत होने का मोरताड़ ईसाई मुत्तम राजू ने इजहार किया। शहर हैदराबाद के इलाके में कुत्तों के हमले में फौत होने वाले मासूम बच्चे के अफराद खानदान से धरपल्ली ZPTC बाजरेडी जगन ने मुलाकात करते हुए दिया पुरसा। धरपल्ली ZPTC व जिले ओलंपिक संगम नायब सदर बाजरेडी जगन ने शहर हैदराबाद के इलाके में कुत्तों के हमले में फौत होने वाले मासूम बच्चे के ताल्लुक से हासिल करदा इत्तला पर इंदलवई देहात में रिहाइश पजीर मासूम बच्चे के अफराद खानदान से मुलाकात करते हुए पुरसा दिया। इस मौके पर इनके साथ BRS कायदीन कारकुनान के अलावा अवामी नुमाइंदे मौजूद थे। ఉదంతం మనము ఈరోజు అన్ని టీవీల్లో ఛానల్స్లో ప్రామినెంట్గా చూపిస్తున్నారు. మరి ఆయన ప్రదీప్ అనే అబ్బాయి ఇక్కడ ఇందల్వాయికి సంబంధించినటువంటి గంగాధర్ అనే ఒక చిన్న ఉద్యోగి కుమారుడు, అది ఒక్కడే కుమారుడు. పాపం ఆయన వర్క్ ప్లేస్లో సండే ఉందని చెప్పి తీసుకెళ్ళిన తరుణంలో మరి అక్కడంతా కూడా నిర్మానుష్యంగా ఉండడం, మరి ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి కుక్కలన్నీ కూడా ప్రాంగణంలోకి రావడం, పాపం మేఘన అనే వాళ్ళ సిస్టర్ ఆమె కళ్ళ ముందే ఈ దాడి జరగడం, మరి ఆమె ఇతరులను పిలిచేంత లోపే ఈ దురంతం జరగడం అనేది చాలా హృదయ విదారకమైనటువంటి సంఘటన. కుటుంబానికి అధికారికంగా ఏదైనా ప్రభుత్వం ద్వారా ఎక్స్గ్రేషియా ప్రకటించే ఛాన్స్ కూడా ఉంది. ఈ కుక్కల దాడి ఏదైతే ఉందో అంతటా జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఇందల్వాయిలో కూడా చాలా కోతుల బెడద ఎక్కువగా ఉంది. ఆల్రెడీ కోతులన్నీ కూడా మనుషుల మీద దాడి చేస్తున్నాయి, కుక్కలు దాడి చేస్తున్నాయి. వీటన్నిటి కూడా ఫుడ్ లేక అడవులు అంతరించిపోయి మరి మనం మిగిలిపోతే పాడేస్తాం ఫుడ్, కానీ ఇటువంటి జీవాలకు మనం ఏమైనా మిగిలిపోయిన ఫుడ్ వేసినా కూడా ఇవి అర్ధాకలతో ఇటువంటి దురాఘాతానికి పాల్పడకుండా ఉంటుందని. इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज के हम सरखे पर। इंदलवई से ताल्लुक रखने वाले गंगाधर के फर्जंद का शहर हैदराबाद में पेश आए वाक़े में फौत होने पर रियासती वज़ीर KTR ने इंतहाई अफसोसनाक करार दिया व मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात को रूनुमा न होने का दिया तहफ़्फ़ुज़। जिले निर्मल सारंगापुर मंडल के जाम देहात में KGBV नए कॉलेज का रियासती वज़ीर इंदिरा करण रेड्डी ने किया इफ्तिताह। आगू मिले जीवन रेड्डी के हैदराबाद में वाक़ई रिहाइशगाह में BRS कायदीन व अवामी नुमाइंदों ने मुलाकात करते हुए मुख्तलिफ उमूर पर किया तबादले ख्याल। बैनुल अक़वामी सतह पर अपनी ताकत का बेहतरीन मुजाहरा करने वाली बॉक्सर निखत ज़रीन को तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मकान के लिए अराज़ी की गई हवाले।
बिहार बीजेपी पार्टी अवाम के इत्मीनान से महरूम हो चुकी है। वो आइंदा मुनक़िद होने वाले इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी फतेह हासिल करने का कांग्रेस पार्टी के साबिक़ा वज़ीर सुदर्शन रेड्डी का नंदीपेट में मुनक़िदा हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा से खिताब। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। तो इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।